है फीटस को, दैट इज amniotic cavity or amniotic membrane. Okay, and after that you will see allentochorionic membrane together. So this is the first water bag actually, but you will not see this water bag coming out. What water bag actually you see, आपने कभी पार्चुरेशन में देखा होगा, आपने देखा होगा वाटर बैग कमिंग आउट, ओके, हैंगिंग थ्रू वल्वा. तो ये पहला वाटर बैग नहीं है. पहला वाटर बैग पहले ही रप्चर हो चुका होता है. यू विल सी द सेकंड वाटर बैग कमिंग आउट एवरी टाइम. ओके, सो I'll try to tell you how actually it happens. क्यों पहला वाला नहीं आता है, सेकंड वाला ही आता है. Just you remember this particular diagram. Okay, so now the water bag, which is first water bag, is forced towards cervix and vagina. Okay, because contraction has begun, uterus contract कर रहा है. Okay, contractiles भी हो चुके हैं. और ये क्या करेंगे, ये squeezing, because glottis is closed. Now they will try to empty the content. Okay, so what content is there inside the uterus? Fetus is there. So fetus will be propelled towards the vagina. Okay, because it is propelled towards the vagina, और ये allentochorionic जो membrane है ये यहाँ पर attach है, यहाँ पर ओके, प्लेसेंटोम के पास ये अटैच है. तो जब भी ये फीटस आगे मूव होगा, ये बहुत ध्यान से समझिए आप, जब भी फीटस आगे मूव होगा तो एमनियन तो इसके साथ मूव होगी, लेकिन कोरियन पूरी तरह से मूव नहीं हो पाएगी. जैसे ही आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अटैच है यूट्रस तो नहीं जा रहा है, यूट्रस से केवल फीटस आगे जा रहा है. तो जैसे फीटस आगे जाएगा और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी आगे जाएगी, लेकिन चूंकि ये सेकेंड ये आई मीन allentochorionic membrane ये प्लेसेंटोम के पास अटैच है, इसलिए ये आगे नहीं जा पाएगी. और बिकॉज कंटिन्यूसली ये आगे जाएगा तो यहाँ से ये क्या होगा, रप्चर हो जाएगा. इसलिए आप देखते हो यू सी गशिंग ऑफ फ्लूइड कमिंग व्हाइल द फर्स्ट स्टेज प्रोग्रेसेस. सो वो जो पानी जैसा यूरिन लाइक मटेरियल आता है, दैट इज allentochorionic फ्लूइड ओनली. ओके, जो ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सेकेंड. Okay, so first stage is over, right? Now we'll see what happens to second stage. So second stage, आप पहला you try to remember the first this slide. What it was written? It was written that it is marked by abdominal contraction and myometrial contraction both. So myometrial contraction starts at first stage itself. Now in second stage you will see abdominal contraction as well. So if you see the first slide itself, it is saying that once the abdominal contraction starts, so that actually marks the beginning of second stage. Okay, now it is something like 1 + 1 is greater than 2, right? Already myometrial contraction was there since first stage. Now over to that we will have abdominal contraction as well, right? So how frequent it is, you can understand that one contraction of myometrium is supported by, you will see 10 to 12 abdominal contraction. So now you can understand how frequent this abdominal contractions are there. आप समझ रहे हैं, ये यूट्रस का एक बार का कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद 10 से 12 कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमेन के आते हैं. तो एब्डोमेन के कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. ओके, दीज आर मोर पावरफुल, वी कैन से. ओके, सो व्हाट हैपेंस, वी विल सी, बिकॉज ऑफ दीज 13 contraction, we can say, of course it is a rough word using 13 contraction, but just in order to make you understand that along with myometrial contraction and abdominal contraction, the fetus moves further. Okay, fetus along with amniotic sac, because allentochorionic sac already ruptured. Okay, so now because of this much pressure, the fetus and amniotic sac, they propelled further and they reach up to pelvic inlet. Pelvic inlet, try to understand pelvic inlet. Now I will not discuss this what is the pelvic inlet, but
try to imagine what is the actual what are the boundaries of pelvic inlet. So as and when the fetus reaches pelvic inlet, it elicits a reflex that is called pelvic reflex. Okay, so now in order to make you more make it more easy for you to understand, because of the abdominal contraction the fetus moved further. Okay, and because the fetus reaches this pelvic inlet, pelvic reflex initiated. So same pelvic reflex, it will, you know, it will cause more of hormone production, and the abdominal contractions will be potentiated further. Okay, अब आप इसको एक बार हिंदी में समझिए कि एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स मायोमेट्रियल भी था, बट एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अलोंग विद मायोमेट्रियल फीटस आगे की ओर आया, और जैसे ही पेल्विक इनलेट में वो टच किया तो पेल्विक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ। ये पेल्विक रिफ्लेक्स एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा पावरफुल बना देगा। सो आप समझ रहे हैं, एक तो पहले ही कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल थे, अब पेल्विक रिफ्लेक्स की वजह से और ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो गए, राइट? बिकॉज powerful contractions were more, now the fetus will propel more powerfully or more quickly than the previous one. Okay, so now because of this powerful pushing force, you will see the fetus reaches to, or the fetal, this amniotic sac and fetus both reaches to cervix and interior vagina. Okay, here there are certain stress receptors are there. इंटीरियर वेजाइना और सर्विक्स में कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, ये क्या करेंगे? स्ट्रेस रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ये सिग्नल देंगे एंड देयर विल बी अनदर रिफ्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड फर्गुसन्स रिफ्लेक्स। सो फर्गुसन्स रिफ्लेक्स क्या करेगा? ये पोटेंशिएट करेगा मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ऑलरेडी यू सी बिकॉज ऑफ पेल्विक रिफ्लेक्स abdominal contractions became more powerful, but myometrial contraction अभी भी उतना पावरफुल नहीं था। सो अब जैसे ही फीटस इंटीरियर वेजाइना और सर्विक्स में पहुंचा, यहाँ पर फर्गुसन रिफ्लेक्स हुआ, ऑक्सीटोसिन, हैवी रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हुआ, और अब मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी पावरफुल हो गए। ओके, सो फर्गुसन रिफ्लेक्स लीड्स टू स्ट्रॉन्ग मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? अब देखो, दोनों चीजों को अगर आप देखोगे, चाहे वो पेल्विक रिफ्लेक्स हो या फर्गुसन रिफ्लेक्स हो, आप देखोगे, आपने फीडबैक मैकेनिज्म सुनी होगी। ओके, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सारा सुना होगा। नेगेटिव होता है कि सपोज सम फोर्स और सम हार्मोन और सम एंजाइम इज देयर, सो इट विल give some signal that okay, don't secrete much right now, its concentration is okay. But positive feedback mechanism means the amount is there, but it will, you know, potentiate is more. Like blood clotting में आप देखो, एक फैक्टर हुआ, उसके बाद तो उसका पॉजिटिव फीडबैक से सेकंड, थर्ड, अप टू 10 फैक्टर तक जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक का। ओके, now in second stage of calving you will see the rupture of alento क्लास ले रहा हूँ। हाँ, मैं 10 मिनट में क्लास ले लूँ। So because the allentochorionic sac ruptured inside itself, okay, so now the fetus is, you know, propelled further. So what you see, like I said, what you see water bag, okay, that is a second water bag only. So first water bag आपको देखने को नहीं मिलता बाहर। Okay, so जो भी आप देखते हो कि water bag आया, तो that is second water bag only, and when it ruptures, it lubricates the pathway.
जैसे because this amniotic fluid is lubricating in nature, so when it ruptures, the entire vagina becomes lubricated. So already the vagina was you know very what you say, edematous and elastic. Now because of this lubrication, you will see uh, it is more easy for vagina to propel the fetus, right? How it happens means, first limb it will occupy the vulva, then one by one gradually they will, this is quite common, there is nothing to understand that. Okay, just reading will help you out to understand this. Now the most difficult part is head. It is voluminous, and it is having a more the diameter will be more, the so maximum abdominal and uterine contractions, is needed to propel the fetal head. Okay, fetal head को बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम है, और इसके लिए एब्डोमेन और यूट्राइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. ओके, once the head is out of the pelvis, now the mother will feel relaxed. It will relax for a bit. Okay, so now we'll see what is the stage 3. So stage 2 means expulsion of fetus had happened. First, limbs will come out. Second, the head with maximum greatest effort, both abdominal and myometrial, both these things will be there. Maximum contraction will be there. And then third means you will see that the chest and other portion will come out in a row. So the expulsion of fetus had happened. So expulsion of fetus marks the ending of second stage. Okay, now coming to the third stage. So third stage, जैसा पहली slide में बताया था, third stage is expulsion of fetus. Okay, so now what happens during this phase? You will see the abdominal contraction stops. Now there is no need of abdominal contraction, but myometrial contractions will be there. It will not stop. You will see change in the amplitude and frequency. So the amplitude is becoming low and the frequency will be higher. ओके, अब एक एग्जांपल बताता हूँ. कभी आप एक नई कॉपी खरीद के लाओ, बहुत अच्छी वाली नहीं, बट नॉर्मल जो कॉपी हम लोग यूज करते हैं, कोई रजिस्टर कोई कॉपी खरीद के लाओ, तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी, कुछ पेजेस जुड़े हुए होते हैं. ओके, उसमें 2 या 3 पेज ऐसे ही जुड़ा होगा. क्या करते हैं आप उसको हटाने के लिए, एक एक पेज लाने के लिए आप एक कॉर्नर कोई जो भी खुला है उसको दो मतलब कॉर्नर से 2 उंगलियों से पकड़ के और धीरे धीरे क्या करते हैं उसको, कई बार बहुत हल्के हल्के झटके देते हो. एक तरीका तो यह है कि एक झटके में खोल दो, एक झटके में खोल दोगे तो आधा पेज फट के हाथ में आ जाएगा. ओके, लेकिन आप खोलने के लिए क्या करते हो, दोनों हाथ की 2 उंगलियां यूज करके दोनों पन्नों का एक एक सिरा पकड़ के आप हल्के हल्के झटके देते हो उसको, लेकिन लगातार देते हो, जल्दी जल्दी कई बार झटके देते हो और वो पेज ओपन हो जाता है. सेम थिंग हैपेंस टू दिस एज वेल. यहाँ पर क्या है, अब हमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दैट सीजेस इमीडिएटली. नाउ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि वो झटके देने, अब झटके ज्यादा जल्दी जल्दी देने हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा जल्दी जल्दी होगा, लेकिन ताकत ज्यादा नहीं लगानी है. ताकत ज्यादा लगाओगे तो वो निकलेगा नहीं, जैसे पेजेस में मैंने बताया आपको. तो पावर या एम्पलीट्यूड उसका लो हो गया और फ्रीक्वेंसी हाई, मींस देयर विल बी मोर फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शंस बट विद लो पावर, सो दैट कॉजेस द डेहिसेंस. वो क्या करता है, वो डिटैचमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. बिकॉज आप देखो, फॉरेंकल और कोटिलिडन दोनों का एक विलाई एंड क्रिप्ट. ओके, सो फीटल पार्ट में विलाई होते हैं और मेटल कॉरंकल में आप देखोगे क्रिप्ट होगा. तो क्रिप्ट के अंदर विलाई फिट हो जाती है, एग्जैक्टली जैसे आप ताले के अंदर चाबी डालते हो, सेम वे. ओके, सो उस एक विलाई बाहर निकल जाएगी, क्रिप्ट पीछे आ गया या श्रिंक हो गया तो डेहिसेंस हो जाएगा.
फिर भी इसका मैकेनिज्म है विल्टा, ठीक है। क्यों होता है एक्सपल्सन, कैसे होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन? ओके, सो आप देखोगे 3 4 5 उसके फैक्टर्स हैं। ओके, फीटल, लाइक मैंने बोला आपको ना, फीटल विलाई विल गेट श्रिंक, ठीक है। तो जहां पे देखो प्लेसेंटोम, इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, प्लेसेंटोम बनने के लिए आपको टॉरंकल और कार्टिलेटन का एसोसिएशन है। नाउ फीटल विलाई विल गेट श्रिंक, तो एक समझ लो कि चाबी आप पहले जो यूज करते थे किसी ताले में, उसकी जो लेंथ थी अब वो हाफ हो गई, तो अब चाबी तो अंदर जाने से रही। सेम थिंग हैपेंस टू दिस because of loss of turgidity, because fetus has came out, now the fetal pool of blood will not be available to support this the turgidity. Okay, so that fetal villi will be less turgid, they will become flaccid, क्योंकि fetus का blood तो support में है नहीं। कोई भी चीज अगर turgid होती है या flaccid होती है, means if more turgid means more blood is there pumped towards that structure। ओके, अगर ब्लड सप्लाई कम है तो वही फ्लैसिड हो जाएगा। ओके, सो फीटस is out, now there is no fetal blood available, so the fetal villi present in the cotyledon will be flaccid. Okay, second, you will see some maturational changes as well. First means collagenization of placentome, collagen fiber change, in strength, change in density, all will happen. Okay, we'll discuss डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, अब इस पॉइंट को देखना और इसके साथ मिलाने की कोशिश करना। जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे लॉक एंड की का जो मॉडल होता है ना, सो फर्स्ट द की साइज ऑफ की रिड्यूस्ड। ओके, नाउ the lock is again changing its conformation, means जो मैटरनल क्रिप्ट था, ओके, जो एकोमोडेट करता था पूरे विलाई को, पहले तो विलाई क्या ही फ्लैसिड हो गया, नाउ इट विल नॉट फिट प्रॉपरली। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी कि जो लॉक है, आई मीन जो क्रिप्ट है, जो उसको विलाई को पकड़ के रखता था, वो खुद फ्लैट हो रहा है। सो विलाई कहाँ फिट होगा? ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ leukocytes, it will cause some degenerative changes as well. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बट आपके समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? श्रिंकेज ऑफ विलाई एंड फ्लैटनिंग एंड लॉस ऑफ क्रिप्ट इन मैटरनल epithelium, okay, endometrial layer. Okay, so there are these are the actual change, and then myometrial contraction, जैसा मैंने बोला कि amplitude will be more, less, and the frequency will be more. Okay, so इस वजह से वो detachment में काम करेगा. So the word is used, opening up of endometrial valves. So endometrium का opening यहाँ पे because of this entire activity it will happen. Okay, clear up to now? यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो आज का यहीं पे शुरू करते हैं। ल्यूकोसाइट का क्या रोल है? हाँ जी, वेट, यहाँ पे Recording stop. प्लीज बोलो बेटा। यहाँ पे ल्यूकोसाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या रोल है यहाँ पे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, चाहे तो चैट बॉक्स में लिखिए आप। आपकी आवाज आ नहीं रही है, मेरे को उतनी प्रॉपर नहीं आ रही। सर रोल ऑफ ल्यूकोसाइट पूछिए सर। ल्यूकोसाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो किस क्या रोल है उसका यहाँ पे? कंसंट्रेशन भी होगा, एक्टिव, नॉट ओनली द कंसंट्रेशन, एक्टिविटी आल्सो गेट्स इंक्रीज। सो ये हमेशा ये क्या करते हैं, किसी भी सरफेस में ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है देयर विल बी अ लाइट inflammatory changes will be there. Okay, so inflammatory changes का मतलब ये है कि now because this this villi, fetal villi will be treated as foreign, क्योंकि fetus बाहर चला गया है, ये foreign body हो जाएगी। अब चूंकि foreign body है तो foreign body में नहीं रह सकती, right?
वो क्या करेगा, वो जाके ये ल्यूकोसाइट्स उसको फैगोसाइटोसिस करना, डिग्रेड करना, फैगोसाइटोसिस करना चालू कर देगा, राइट। और जो फीटल जो क्रिप्ट है, मैटरनल क्रिप्ट है, उसमें एडिमेटस चेंजेस आ जाएंगे। तो अब वो जो जो आप ये बोल रहे हो ना फ्लैट हो रहा है, क्रिप्ट का मतलब समझते हो, गड्ढा, राइट। तो अब ये क्रिप्ट और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा और इसकी वजह से डिटैचमेंट होगा। पहले तो आप ऑलरेडी सिंक हो गया था, फिर भी जो ये फीटल विलाई अंदर घुसी थी ना, ये इसको डिग्रेड करना चालू कर देता है लिपोसाइट्स, ओके। बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन, बिकॉज ये फॉरेन बॉडी हो गई, डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से क्या होगा, डिग्रेडेशन हुआ, तो वो जो टिश्यू या सेल्स हैं वो हटी वहां से। दूसरा, ये क्रिप्ट भी फ्लैटन हुआ मोर पावरफुली, ये है उसका, ओके। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? मैं ये जो आगे का जो साइन है ना, वो आपको नए क्लास में, दूसरे वाले क्लास में पढ़ाऊंगा, ओके। बट ये समझो कि पूरे ऑब्स्टेटिक्स का जो जो वो है ना, सार है ना, वो ये पार्चुरेशन एंड डिस्टोकिया में ही है। तो इसको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। मुझे मालूम है आप बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बट ट्राई टू रीड इट एज मच एज पॉसिबल, ओके। आप नोट्स लिखते रहो, जो भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको नोट्स वगैरह लिखते रहो, उसको समझने का प्रयास करो, रटने का प्रयास मत करना। पार्चुरेशन और डिस्टोकिया, बाकी चीजें रट लेना, कोई इशू नहीं है, बट डिस्टोकिया, पार्चुरेशन, इसको रटने की कोशिश करोगे कभी आएगा नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल फिजियोलॉजी इन्वॉल्व इन दिस पार्चुरेशन इवेंट, क्योंकि यही मेन है, पूरा ऑब्स्टेटिक्स इसके ऊपर टिका हुआ है, राइट। कोई आपकी क्वेरीज हैं तो पूछो, नहीं तो एंड करते हैं इसको। सर एक प्रोलेप्स का केस है सर, यूटेराइन सर्वाइको वेजिनल प्रोलेप्स का सर केस है। हाँ हाँ उसको कैसे सर ट्रीट करेंगे सर? ये आज के टॉपिक से रिलेटेड है क्या? नहीं सर, यहाँ पे केस है सर मेरे घर के बगले में।